So hello dear students. Yesterday we have discussed about the formation of male and female gametes, and now we understand it very clearly that male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grains and embryo sac. And because as you all know that gamete, either it may be pollen grain or it is ova, they both are non-motile. That means they can't move. So if they cannot move, how fertilization to be occur, है ना? Fertilization कैसे होगा? तो for achievement of that process, pollination is the mechanism to achieve this objective. That means for the fertilization process it is necessary that pollen grain reaches to the stigma. ये तो आप सब जानते हो. इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? Pollination बोलते हैं. And I have just make a flow chart so that you can understand very well. It is autogamous, zenitogamous and xenogamous. So these all three kinds of pollinations are on depend upon the source of pollen, from where pollen comes. So in first case, that is autogamous. Autogamous means that the pollination occurs in the same flower. I have drawn two flower over here, and these are the bisexual flower. That means the flower has the male part as well as the female part of the flower. So from anther, pollen grain releases and fell down onto the same stigma. Okay. So in a normal flower, जो flower normal का means normal flower which is present in your surroundings, so normal flower is generally open and they expose anthers and stigma, right? And complete autogamy is, ब्रदर आई कैन से इट इज़ रेयर दैट कि कंप्लीट ऑटोगैमी होती है कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती. इट इज़ रेयर है, बट ऑटोगैमी इज़ डेफिनेटली पॉसिबल. एंड इन सच टाइप ऑफ फ्लावर देर आर टू थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड. वन थिंग इज़ दैट these flowers, that means autogamous flower, they have both stigma and style in the same flower. That means they should be bisexual. And another thing is that they require, or you can say they need, the synchronization between the pollen release and the stigma's receptivity. And what do you mean by this? If I am saying this, like suppose this is a anther and it is immature, अब ये mature नहीं हुआ है ये anther, ठीक है. एंड दिस इज़ द स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, माने कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. दीज आर द ओव्यूल. सपोज पॉलन ग्रेन शेड फ्रॉम हेयर, यहाँ से पॉलन ग्रेन शेड हुआ, स्टिग्मा पर पहुँचा. एंड इफ़ इट इज़ इमेच्योर, दैट मीन्स पॉलन ग्रेन अगर पहली चीज़ तो आएगा नहीं, और अगर इमेच्योर कंडीशन में है तो देयर विल बी नो यूज़ टू द स्टिग्मा, क्योंकि इसके लिए कोई काम का नहीं, फर्टिलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल. एंड अगर केस इज वाइसी वर्सा है, सपोज कर लो कि पॉलन ग्रेन इज़ मेच्योर बट स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, दैट मीन्स फीमेल पार्ट इज़ इमेच्योर, तो भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है. दैट मीन्स कि बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर शुड मेच्योर साइमल्टेनियसली, साथ साथ उनको मेच्योर होना है सो दैट वो काम आ सके फर्टिलाइजेशन के. तो दिस इज़ द वन थिंग आई हैव टोल्ड यू. नेक्स्ट थिंग इज़ इन नेक्स्ट स्लाइड इफ़ यू मूव. This is the diagram which is most favorite diagram of the board people, because on and off they keep on asking about this diagram. They give you this diagram in question paper and ask many kinds of question framing around this diagram. Like sometimes they ask, they have removed the name of flower and they ask what is the name of these flower, what is this flower, and give the characteristic features of this and that, like that. So that means बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हर तरह से पढ़ेंगे, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में. तो दे टोल्ड दैट देयर आर सम फ्लावर, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल पॉलिनेशन. तो इन सेल पॉलिनेशन में ही मैं आपको बता रही हूँ कि देयर आर सम प्लांट्स लाइक वोयला, ऑक्जेलिस, कॉमेलाइना, दे ऑल आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. They produce two types of flower, and here you can say two type of flower. This is chasmogamous flower and this is schistogamous flower. In chasmogamous flower there is nothing new, है ना. कुछ भी चीज़ आपको इसमें नई तो नहीं दिख रही है कि कुछ मैं स्पेशल आपको बता रही हूँ. आई एम टेकिंग जस्ट अनदर कलर. तो दिस इज़ द सिंपल नॉर्मल फ्लावर वेयर स्टिग्मा एंड स्टेमस आर एक्सपोज्ड. जैसे हम नॉर्मल फ्लावर देखते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं होगी. बड़ी बात किस में हो गई? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में, बिकॉज दीज फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल, दे नेवर ओपन. दैट मीन्स सपोज ये हो गया, मैं कलर चेंज करती हूँ. सपोज दिस इज़ द फ्लावर, तो इसके अंदर इनके एंथर लगे हुए हैं ये, और इसके अंदर ये फीमेल पार्ट भी है, ठीक है. स्टाइल स्टिग्मा ओवरी जैसा भी बन रहा है, आप समझ लो, ये समझ लो, ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं. तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन एवर स्टेमन्स मेच्योर्स, है ना, स्टेमन मेच्योर हुआ, ये ब्लैक कलर का बना रही हूँ. स्टेमन मेच्योर हुआ, पॉलन ग्रेन बना, पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर फेल डाउन हुआ एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स. दैट मीन्स नो प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
pollen grain from the male part to the female part. तो ये इसके अंदर हो गया ना, क्योंकि ये क्लोज है फ्लावर, ये कभी ओपन ही नहीं होता है. तो इन सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास होते हैं. एंड वेन एवर एंथर बर्स्ट आफ्टर मेचुरेशन द pollen grain releases and come to the stigma and पॉलिनेशन विल अकर, है ना, पॉलिनेशन हो गया इसके अंदर. तो देर आर दो इंपॉर्टेंट थिंग. क्या इंपॉर्टेंट थिंग आपने नोटिस किया? दैट क्लीस्टोगैमस फ्लावर आर ऑटोगैमस, 100% दे आर ऑटोगैमस बिकॉज देर इज़ नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, कोई भी चांस नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओपन ही नहीं होते हैं, तो बाहर का पॉलन ग्रेन आएगा कहाँ से इनके पास. एंड अनदर थिंग इज 100% अश्योर्ड सीड फॉर्मेशन अकर्स इन दिस, क्योंकि जब अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आफ्टर ऑल क्या बनेगा? सीड तो बनेगा ही बनेगा. तो दीज आर द two things which you have to keep in mind in reference of cleistogamous flower, that these are 100% self pollinated or autogamous kind of. And another thing is that 100% seed set formation, seed set means seed का बनना, formation occurs इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स. क्योंकि पॉलिनेटर्स नहीं है, ये एक बड़ी बात हुई. अगर क्वेश्चन ऐसे आपको आ जाता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स इट इज़ पॉसिबल टू सेट द सीड, तो आपको उस समय तो लगेगा क्वेश्चन पेपर देख के कि ऐसा कैसे हो सकता है, पॉलिनेटर्स आर नॉट देयर, हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट सीड विल गोइंग टू फॉर्म. बट इफ़ यू रिमेंबर केयरफुली तो आपको ये वाले फ्लावर्स याद आएंगे कि येस, इन क्लीस्टोगैमस फ्लावर दिस इज़ पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स बिकॉज दे आर क्लोज, उन्हें किसी की हेल्प चाहिए ही नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. दीज आर द, हाँ, दिस इज़ द पैराग्राफ विच इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो, यू रीड इट. आई हैव जस्ट मार्क द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो. द अनदर इज़ द जिटिनोगैमी. और जिटिनोगैमी में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. अपने फ्लावर पे नहीं जाएंगे. सपोज मैं अगर डायग्राम से बनाऊँ तो ये एक फ्लावर हो गया और ये एक दूसरा फ्लावर हो गया, इसमें सब स्टेमन वगैरह वगैरह सब लगे हुए. तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर का मतलब हुआ इस फ्लावर से लेकर के वो यहाँ पर आ रहे हैं, इस फ्लावर के ऊपर आ रहे हैं. तो प्लांट सेम है, ठीक है, सेम प्लांट है. आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्लांट इज़ सेम, इट इज़, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम प्लांट. So transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower of the same plant. Autogamy में same plant same flower में ही हो रहा था, ये same flower में नहीं हो रहा. Plant is same but flower are different. तो हम ये भी कह सकते हैं नीटोगैमी is functionally cross pollination. ठीक है, functionally means दूसरे फ्लावर का आ रहा है ना, तो functionally it is cross pollination, है ना. और अब इसमें है क्या? इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट भी हो सकते हैं. कोई भी आई, कोई भी यहाँ पर बैठी, इस फ्लावर पे बैठी, फिर इस फ्लावर पे भी बैठ गई, तो यहाँ से उसने पॉलन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए. तो फंक्शनली तो इसको आप क्रॉस पॉलिनेशन मानोगे, बट जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू द ऑटोगैमी. वाई इट इज़ सो? बिकॉज जेनेटिकली तो प्लांट तो सेम ही है, ये फ्लावर तो एक ही प्लांट के हैं ना दोनों. तो ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस थिंग इन ऑल्सो in your mind that in Geitonogamy, this one, these in this flower, this kind of pollination, it is known as functionally cross pollinated but genetically it is autogamy. तो genetically autogamy क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि it occurs in the same plant, तो genes तो उनके एक से है ना, इसलिए. Now third one is xenogamy. Xenogamy is very easy. That means ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट. उसमें तो पूरी कहानी खत्म हो गई. एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, एक इसमें फ्लावर है, एक इसमें फ्लावर है. तो ये यहाँ का स्टिग्मा निकल, सॉरी वो एंथर निकल, सॉरी एंथर भी नहीं, पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकल करके यहाँ तक आ गया. तो ये तो फ्लावर जेनेटिकली भी डिफरेंट हो गए, दोनों अलग अलग हैं. तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट. एंड दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन where during pollination brings genetically different types of pollen grains onto the stigma, है ना. ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखने की. अकेला ऐसा pollination है where genetically different types of pollen grains come to the stigma. ये अलग जेनेटिकल फीचर्स का है, ये डिफरेंट जेनेटिकली फीचर्स का है, लेकिन अब यहाँ का pollen grain यहाँ पर आ रहा है, लैंड कर रहा है, तो दैट मीन्स जेनेटिकली मिक्सिंग हो रही है इनको. इसको जीनोगैमी को वी ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं. So students, I just stop here, and in next lecture we will discuss about the agents of the pollination. Thank you.